Okay. So welcome ladies, welcome to your training round 2 for your talent round 2. I hope you guys are as excited because today we have another interesting profile, to groom you guys, and that's an influencer. I'm sure everybody is aware of the importance of social media and the importance that influencers hold in today's time. And this session is going to be a very key factor in you guys organizing your photo shoot. So that you can ensure yourself that आप खुद भी एक photo shoot self execute कर सकते हैं without anybody's help, because the person who is coming up on board today is the person who has actually done something on her own always with the regards to the pictures. So let me just introduce you to Riya Kaur Chabda. I'd request Riya to put on her video so that we can finally see her. Okay, there she is. Hi Riya. Please unmute कीजिए अपने आप को. आप mute पे हो. हाँ. I think yeah. Is it fine now? Yeah, it's perfect. Hi, how are you? I'm good. How are you? I am good too. Thank you. And you look lovely, of course. So just give me a minute before I introduce you, and then of course you take over. So Riya Kaur Chabda is a fashion designer and a stylist. She has worked for Myntra Fashion Week and also runs her own venture with the name Suri Dhaga. So that's Riya Kaur Chabda for you guys. I will be sharing her Instagram details in the end of the session for you to connect. And on the second basis, the idea would be please do not unmute yourself unless asked to, and make sure that you ask Riya questions related to her profile and not related to talent round 2, because we need to understand the boundaries here. So give me a thumbs up if we are all set. And I would request most of you to put on your videos, because that would help Riya to engage better, and I'm sure communicate better. So let's get started. Riya, over to you. Welcome on board. All right. Thank you so much, Harry. So guys, I think most of you are here, and let me just start. All right, today we'll speak about, already I think Harry ne batai diya hai that we are speaking about photography. So let me just share the PPT with you guys. All right. Is the PPT visible to everyone? Yes, it's visible. Okay, fine. All right. So today we will be talking about self-portrait tricks and tips and tricks. I'm so sorry. And self-portrait is nothing. It's just an, clicking your own pictures, which is called self-portrait. और इसमें आप खुद इसमें कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप घर पे बैठ के खुद ही अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो. There are many times when we want to click our pictures, but we don't have, way many professional things with us, such as cameras, or maybe whatever equipments which are used to फोटो शूट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम, वो सबके पास अवेलेबल नहीं होती है. सो यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स डाले हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो और घर पर ही एक अच्छा सा फोटो शूट कर सकते हो. ठीक है. सो सेल्फ पोर्ट्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स, लेट्स गो विद इट. All right, so the very first thing is that don't always look into the camera, which is a traditional pose. हम लोग जब भी कैमरा में देखते हैं तो we always tend to look into the camera, okay, which is very traditional, and people get conscious also at some point of time that we are looking into the camera. दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, this, that, what not you guys think, and me as well. So one thing which I noticed and I also discovered that whenever we look into the camera, we have always, one traditional pose कि हमें camera में देखना है. So let's not do that. Whenever you are doing a photo shoot, let's always, give a candid pose. जैसे यहाँ देखना या कुछ करते हुए या something you need to keep. You cannot keep the picture plain. Let's keep it attractive. The more the candid the picture is, the more it will look good. Okay. तो पहली बात ये है that this is a very important thing, guys. Don't always look into the camera. It's a very important tip I'm sharing with you. You would feel the difference when आप एक picture click करोगे जब आप कैमरा में देख रहे हो और जब आप यहाँ वहाँ या कुछ करते हुए, even if you're holding a bag, that also makes a big difference in your picture, because there's थोड़ा attract करता है वो. Also, okay, for a profile shot, face towards the light, it will give you a beautiful glow.
profile shot is nothing. It is this is your profile, which is called the जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी profile है, and ये मेरी side profile है. These are my side profiles. So whenever you're clicking a profile shot, always you know, face towards the light, it will naturally give you a beautiful glow. Why is that? Because जब भी आप profile shot लेते हो और अगर light आपके ऊपर पड़ती है, like not harsh, but अगर आपको थोड़ा सा भी light आपके face से पड़ती है, तो it will naturally give you a beautiful glow, and you know, dull नहीं आएंगे आपके pictures. बहुत लोग complain करते हैं कि हमारी pictures अच्छी नहीं आती हैं या dull आती हैं. उनका reason यही होता है कि आपकी lightning अच्छी नहीं होती है. And whenever you're taking a profile shot, always face towards the light ताकि आपको beautiful glow मिले. I'll just show you a reference picture. So I've kept a reference picture for you guys, which is called the profile shot. Can you just see that lady? She's just standing towards the light, and it's just a very normal picture. कुछ heavy editing नहीं हुई है उसमें, and you know, you could just see a beautiful glow, you know, face के ऊपर उसके. So these are some stuff, you know, you need to handle whenever you are clicking pictures by your own, and कुछ ideas लगा के आप ऐसे picture click कर सकते हो, and you don't need so many equipments. Okay, if you're worried about the equipments, don't worry about that. We will figure out in the next slide जो मैं आपको lightning के बारे में बताऊंगी. Okay, sorry. Relax your body while posing. Try to give a gentle feel. So guys, I have always seen that you know, even when I was a beginner, when I used to get pictures clicked, for me it was very hard to open up in front of anyone, or maybe even with me. Even if I am, you know, I'm clicking my pictures by my own, अगर मैं खुद की pictures ऐसे अकेले खींच रही हूँ तो मुझे you know, it was very hard for me to open up. And to do that, it's very important कि जब आप पोस्ट कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करो और जेंटल फील दो. बिकॉज आप जितना अपनी बॉडी को स्टिफ रखोगे और जितना आपके दिमाग में चलेगा दैट यू नो हाउ एम आई लुकिंग, सो यू नो दैट इज डेफिनेटली गोना कम ऑन योर पिक्चर्स. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, यू नो, दे आर नॉट एबल टू, यू नो, उनकी पिक्चर्स क्लिक नहीं हो पाती हैं because you know they are not trying to open up. So in that case, I would just suggest you that whenever you're getting pictures clicked, please let's not think about how we are looking, and how we need to just focus on ourselves, our confidence, and that's how you're gonna get a good picture. जितना आप परेशान होगे, like you know कि मैं you know दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी, उतना ही आपकी पिक्चर पे वो दिखेगा. So let's not do that. Let's always relax our body while posing. Just be you, whatever you like. Even आपको कोई pose आ भी नहीं रहा है, don't look into the camera. Just do whatever you want to do. It will definitely give you a candid picture, and वो बहुत अच्छी आएगी. Try this at home. Once the session is done, you would feel the difference. Okay, backlighting. So guys, backlighting is nothing. Backlighting कुछ भी नहीं है. Backlighting ये है कि लाइट आपके पीछे से पड़ती है, तो जो आपने आगे रखा है द लाइट, वो आप पीछे रख के भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो. एंड दिस इज समथिंग दैट आप एक नेचुरल यू नो फ्लिटर क्रिएट कर सकते हो अपनी पिक्चर में. नेचुरल, यू नो, यू जस्ट कीप द लाइट बिहाइंड एंड इट्स गोना गिव यू अ वेरी वेरी ड्रीमी इफेक्ट. ओके, तो उस चीज के लिए मैं आपको और एक रेफरेंस पिक्चर दिखाती हूँ. यू कैन सी अ गर्ल हियर. जो उसकी पिक्चर है वो बैक लाइटिंग के थ्रू क्लिक हुई है. सो कैन यू जस्ट सी दैट व्हाट अमाउंट ऑफ ड्रीमी दिस इफेक्ट इज. I mean, it's looking a very very good picture. Also backlighting में ये भी होता है, when you don't want you to focus on your face, that means आप नहीं चाहते आपका face ज़्यादा दिखे but आपकी around की चीजें ज़्यादा दिखें, उस टाइम पर आप backlighting यूज कर सकते हो. So can you see that उसके फेस पे हार्श लाइटिंग नहीं पड़ रही, बिकॉज ऑब्वियसली वो पीछे से आ रही है लाइट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम शी इज लुकिंग सो प्रिटी, एंड उसकी जो पिक्चर है वो इतनी ड्रीमी. दिस इज अ वेरी मतलब unedited है, this is a raw picture. Okay, so you could just see the amount of light, it's perfect, the amount of effect, it's perfect, and it's a natural effect. Okay, so whenever you want
कि हम अपने आसपास की चीजें ज्यादा फोकस कराएं और अपनी पिक्चर को ड्रीमी लुक क्रिएट करें. सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर बैकलाइटिंग पिक्चर्स. व्हाई? बिकॉज उसमें आपकी जो फेस पे जो कम लाइटिंग पड़ेगी, and you know it wouldn't be that harsh and people would not want to just notice you but things around you. Okay, so that is the reason why we use backlighting. Okay, all right, sorry. So use a reflector to bounce the light so that your face doesn't look flat. So guys, reflector is nothing. It's an equipment we use for photography. जब light बहुत ज़्यादा harsh हो जाती है तब हम reflectors को use करते हैं, because वो light पे light bounce करता है. जैसे this is a reflector for example and light is coming from there. It just bounces and gives you the subtle amount of lighting. अगर आपके पास reflector नहीं है, just in case किसी के पास भी नहीं होता है जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री से नहीं है, उस टाइम पे आप कुछ भी वाइट चीज यूज कर सकते हो, लाइक बिग पेपर A3 शीट, या उससे भी A2 शीट आप यूज कर सकते हो, या उसके बाद हम थर्माकोल भी यूज कर सकते हैं, वो भी वाइट होता है. तो बट दिस इज जस्ट एन एडिशनल थिंग आई एम सजेस्टिंग यू, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि जब हार्श लाइटनिंग हो तब आप जाके फोटो शूट करो. दिस इज लाइक अगर आपको करना ही करना है तो फिर आप रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको आप कम ही रखो. रिफ्लेक्टर्स के जो आपको जितनी यूज करना है उसको कम ही रखो, बिकॉज आपको रिफ्लेक्टर पकड़ने के लिए भी कोई चाहिए होगा. रिफ्लेक्टर को आप एक जगह रख के फोटो नहीं क्लिक कर सकते हो, आपको रिफ्लेक्टर को घुमाना पड़ता है. सो आपको उस टाइप की ही लाइटिंग मिले. तो ट्राई करो कि आप रिफ्लेक्टर ज्यादा यूज ना करो, और अगर आप करो भी तो वो इट शुड बी लाइक टाइम की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, आपको अभी इसी वक्त शूट करना है, उस टाइम पे आप बैकलाइटिंग सॉरी this I'm so sorry reflector use कर सकते हो. Reflector is used when you have a harsh amount of lighting. harsh जब आपके पास बहुत ज्यादा लाइटिंग हो तब हम रिफ्लेक्टर यूज करते हैं. ठीक है. Okay, light adjustments. This is a very very important thing. Why? Because हम लोग हमारी पिक्चर्स कभी कभी डल आ जाती हैं, या कुछ उनमें कुछ तो लाइटनिंग का इशू हो जाते हैं, and these are like 2-3 things you need to follow if you want that कि लाइटिंग हमारी इसमें अच्छे से आए. कि light should always be diagonal but not straight towards your face. Diagonal in the sense कि आप सीधा इसको अगर आप बिल्कुल ही आगे रख दोगे लाइटनिंग को, it's gonna become harsh again. So there's no point of clicking pictures इतनी harsh lighting में. आपने देखा होगा इनकी फोटोज में इतनी लाइटनिंग हो जाती कि सब कुछ वाइट वाइट नजर आता. That is the problem. So की लाइट जो होती है, जो आपकी की लाइट which is the ambient light जिससे आप फोटो क्लिक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये की लाइट है और मेरे पास कोई लाइट नहीं है, यही मेरी की लाइट है, ये हमेशा डायगोनल होगी और स्ट्रेट टूवर्ड्स फेस नहीं होगी. ऑल्सो मेक श्योर कि जो आपकी लाइट है वो नीचे ना हो बल्कि थोड़ी ऊपर हो, इतनी ऊपर भी नहीं, बट एटलीस्ट आपके फोरहेड के बिल्कुल एडजस्ट में. Just keep it here so you get a good amount of light, and keep it a little far. It depends on the intensity of your light. जितनी आपकी लाइट की रेज है उस हिसाब से आप उसको, अगर कम है तो आप पास कर दो, अगर बहुत ज्यादा तो पीछे ही रखना प्लीज, आगे मत रखना उसको, वरना वही प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. पिक्चर्स विल लुक सो ब्राइट दैट फिर आपको एडिटिंग करने में भी बहुत मुश्किल होगी. ठीक है. टिप्स. Okay, so as I suggested you that please don't use a reflector. तो रिफ्लेक्टर हमें जरूरत पड़ती है दोपहर में बिकॉज ऑब्वियसली दोपहर में कितनी हार्श सनलाइट होती है, राइट? इतनी हार्श सनलाइट होती है कि बाहर भी जाने का मन नहीं करता, तो शूट तो दूर की बात है. इसीलिए हम नेचुरल लाइट्स यूज कर सकते हैं, बट आप अवॉइड करो कि आप आफ्टरनून में, जैसे अभी का वक्त है 12 से लेके 4 बजे तक बहुत बहुत धूप होती है, तो उस टाइम पे आप अवॉइड करो. बट अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है, या इफ इट्स इन अ वर्स्ट सिनेरियो केस कि आपको 12 से लेके 4 बजे तक ही करना है, तो उस टाइम पे आप रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हो. बट ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग या 4 बजे के बाद शूट करो. 4 बजे के बाद आपने देखा होगा सनसेट होने लगता है. इट इज अ गोल्डन आवर. So it's in different cities में, sorry different जैसे साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है,
उसमें इट डिपेंड्स कि वो सनराइज कब होता है, सनसेट कब होता है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो कि आपका सनसेट कब है और सनराइज कब है. सो द परफेक्ट टाइमिंग फॉर क्लिकिंग पिक्चर इज 20 minutes before the sunrise and 20 minutes before the sunset. This is called a golden hour. Okay, guys. Golden hour is, I'll show you a reference picture. You can see a girl sitting down. That picture is been clicked in and golden hour. Okay, golden hour आप लिख लो 20 minutes before the sunrise and 20 minutes before the sunset. This is the perfect timing for you to click a picture. Depends on your area कि कब sunset और कब sunrise हो रहा है. Because clouds भी बीच में आ जाते हैं कभी कभी, so you need to notice on that कि कब sunset और sunrise हो रहा है. But the perfect timing is 20 minutes before the sunrise and 20 minutes before the sunset. This is the golden hour and you can click infinity pictures. वो इतनी प्यारी आएंगी कि you would feel very good about it. और वो जो light होती है, जो golden hour की light होती है, वो harsh भी नहीं होती है. The very good part is that, and it gives you such a beautiful effect in your picture. As you can see कि इसके जो लड़की के फेस पे इतनी भी लाइट नहीं पड़ रही है, बट एटलीस्ट पड़ रही है और वो इतनी प्यारी पड़ रही है. सो दिस इज कॉल्ड द गोल्डन आवर एंड आई वुड सजेस्ट कि आप गोल्डन आवर में ही पिक्चर क्लिक करो. ठीक है. और अगर वर्स्ट सिनेरियो केस हो तो आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बट रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ेगा और फिर आपको अपनी मम्मी को, बहन को, किसी को, फ्रेंड को ऐसे रिफ्लेक्टर खड़े होके उनको पकड़ना पड़ेगा. बट ठीक है, वो भी आप कर सकते हो. इफ यू हैव समवन अराउंड you can get your pictures clicked between 12 to 4. But वैसे please try golden hour pictures. It really comes out good. Okay. Editing apps, it's everybody's favorite कि हम अपनी pictures तो click कर लिया, अब उसको ठीक कैसे करें, उसमें कुछ खराबी है. So these are a few of the editing apps you could use, and they are extremely awesome in every way. वो बहुत, ये जितने भी मैं आपके साथ editing apps share कर रही हूँ, they are completely free on Android and iOS. ठीक है. इसमें कोई भी आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे. This is completely free. You could use this. इसमें जितने भी फीचर्स मुझे यूज करने हैं, आपको यूज करने हैं, वो सारे फ्री हैं. आपको वो ऑफर करेंगे कि आप पे करो, बट हमें फीचर्स चाहिए वो हमें फ्री वर्जन में ही मिल जाते हैं. ठीक है. Lightroom is something, guys, that is being used by the professionals. जो photographers होते हैं, Lightroom और Snapseed बहुत use करते हैं, because definitely these are professional apps, but they are very common now and can be used by you and me as well. ठीक है. It's a basic editing app. जितनी हमें जरूरत है वो फ्री वर्जन में आ जाता है. ठीक है. बाकी ऑब्वियसली जो पेड वर्जन होता है उसमें तो बहुत कुछ होता है, बट हमें उसकी नीड नहीं है. हमें बेसिक में ही बहुत कुछ मिल जाता है. सो Lightroom, we'll talk about Lightroom. Lightroom is more of a color grading color grading app है वो. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा हमारी पिक्चर्स बहुत डल हो जाती हैं कभी कभी. अगेन लाइटनिंग इशू. अगर आपकी लाइटनिंग ठीक हो तो डेफिनेटली आपको अच्छी पिक्चर मिलेगी. बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी पिक्चर और ज्यादा और ज्यादा कलरफुल लगे, या you want it to look very pleasing to eyes, then you can use a Lightroom, guys. ठीक है. So that is what Lightroom does. Lightroom has many people just use it for color grading because that's the best amongst all the other apps. Okay, and I'll show you how it's been done. So this is a picture of mine. मैं गई थी कहीं पे और this thing what I felt when जो मेरी पिक्चर थी before वाली, जो मैंने before लिखी है, मुझे ऐसा लगा कि बहुत it's giving a very bluish look and something was wrong in my picture. मुझे बिल्कुल भी pleasing नहीं लग रही थी वॉइस को. तो मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा सा उसका कलर चेंज किया. आपको आफ्टर में दिख रहा होगा. Can you see in the after how the picture कैसे उसका कलर चेंज हो गया? बिल्कुल देख सकते हो आप लोग. आई हैव मैंने क्लाउड्स को ठीक किया. पहले क्लाउड्स में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ग्रीन लुक आ रहा है. you could see my skirt also. It's giving a little of greenish effect.
सो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई भी कलर कर सकते हो, बट फैमिली से कर सकते हो. जैसे ब्लू ऑल्सो कम इन अ फैमिली ऑफ ग्रीन, तो आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो. ये नहीं कि आप बिल्कुल ही चेंज कर दोगे कलर, बट हाँ आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो थोड़ी थोड़ी, और अपनी पिक्चर्स को और एनहांस कर सकते हो, और ज्यादा कलरफुल और ज्यादा प्लीजिंग कर सकते हो अपनी पिक्चर को. तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन इन लाइटरूम. और लाइटरूम इज नथिंग, इट्स नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप जैसे ही लाइटरूम डाउनलोड करोगे आपको एक गाइड मिलेगी. जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे गाइड होती है. अगर आपको समझ ना आए कि ये फीचर्स कहाँ पे हैं, जस्ट 5 मिनट दो लाइटरूम को, बटन इधर उधर प्रेस करो, आपको सब पता लग जाएगा कि लाइटरूम में कहाँ क्या क्या होता है. बिकॉज मैंने भी ऐसे ही सीखा था. लाइटरूम मैंने डाउनलोड किया था, मुझे किसी ने बताया था, और मैंने भी कहीं से सीखा नहीं था. मैंने बस एक 5-6 मिनट ऐसे ही देखा ऐप को खोल के, यहाँ वहाँ बटन प्रेस की, मुझे सब कुछ समझ आ गया. तो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमें कैसे यूज करें. वो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको उस पर गाइड मिलेगा. ठीक है. ओके, तो दिस इज लाइटरूम गाइस. कलर ग्रेडिंग, ऑलवेज रिमेंबर, जब आपकी पिक्चर में कलर्स डल हो तो आप हमेशा उनको बहुत बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो लाइटरूम में. ठीक है. Snapseed, guys, Snapseed is an amazing app. Again, it's again used by the professionals. इसमें बेसिक करेक्शंस होते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन के. इफ यू गाइज नो व्हाट इज ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन. ऑल्सो इट अलाउज कि आप इम्पोर्टेंट चीजें हाईलाइट करो अपने फोटो में. एक बेस्ट पार्ट ये भी है स्नैपसीड का. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स होंगी जिसमें आपके पैर डार्क होंगे और फेस ब्राइट होगा. अगेन लाइटनिंग इश्यू, दैट इज, और एनीथिंग. आपका फेस डार्क होगा, आपकी बॉडी ब्राइट हो जाएगी. आपके हाथ डार्क हैं बट बॉडी ब्राइट हो जाएगी, या हाथ ब्राइट, वो मतलब समथिंग और अनदर इज रॉन्ग इन द पिक्चर. स्नैपसीड आपको अलाउ करता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को डार्क और लाइट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पर्सन, उसकी लेग्स डार्क है बट फेस ब्राइट है. तो हम जब भी ब्राइटनिंग के ऑप्शन पे जाते हैं नॉर्मल किसी ऐप पे, तो वो पूरी पिक्चर को ब्राइट कर देता है. बट स्नैपसीड ऐसा नहीं करता है. स्नैपसीड, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये एरिया बहुत डार्क है बट ये बहुत ज्यादा वो है, इट्स मोर ऑफ हाईलाइट जिसको हम कहते हैं. आप यहाँ पे उसको प्रेस कर सकते हो. एक ऑब्जेक्ट आता है उसमें, और आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया को लाइट और डार्क कर सकते हो. या अगर आपकी पिक्चर बहुत ही ज्यादा मतलब लाइट है, जिसपे ज्यादा लाइट पड़ रही है, आप उसको डार्क भी कर सकते हो. पर्टिकुलर चीज को, पूरी फोटो, हम किसी भी ऐप पे जाते हैं, हम ब्राइट और डार्क करते हो, पूरी फोटो ही ब्राइट और डार्क हो जाती है. बट स्नैपसीड ऐसा नहीं करता है. स्नैपसीड आपको अलाउ करता है कि आप एक ही पर्टिकुलर चीज को लाइट और डार्क कर सकते हो. सो दिस इज अ वेरी वेरी बेस्ट फीचर इन स्नैपसीड गाइस. ठीक है. और ऑल्सो इट ऑल्सो अलाउज यू टू स्पॉट करेक्शन. जैसे स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स होते हैं हम फेस पे, या अगर ऑल्सो स्नैपसीड पे ये भी है, जैसे पीछे आप ये देख रहे हो, मैं इसको भी स्नैपसीड पे हटा सकती हूँ. मैं ये इसको आप करेक्ट कर सकते हो स्नैपसीड पे. आप इसको ये पूरा हटा सकते हो, हील कर सकते हो उसको. बट इतनी बड़ी बड़ी चीजें हील नहीं कर सकते गाइस. पहले भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, वो कंफ्यूज हो गए थे. तो ऐसा नहीं है कि आपके पीछे ये सोफा पड़ा और आप ये सोफा हटा दो. ऐसा नहीं हो सकता. छोटी छोटी चीजें आप निकाल सकते. जैसे मेरे पास बॉटल पड़ी है, मेरी फोटो में बॉटल है, मैं बॉटल हटा सकती हूँ अपनी फोटो से. या ये जो पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हो, लकड़ी लगी हुई है, इसको भी मैं हटा सकती हूँ स्नैपसीड पे. पर मैं बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स नहीं हटा सकती हूँ. फॉर एग्जांपल, ये सोफा हो गया, या समथिंग. सो यू नीड टू बी केयरफुल. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कंफ्यूज मत हो जाना कि हम कुछ भी हटा सकते हैं स्नैपसीड में. ऐसा नहीं है. हम स्मॉल चीजें हटा सकते हैं. और जो ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा आपकी पिक्चर में, आप उसको बहुत आराम से इरेज कर सकते हो अपनी पिक्चर में. ठीक है. HDR and sharpening features that enhance the dynamic range of your photos. कभी कभी हमारी पिक्चर्स बहुत ब्लर हो जाती हैं,
या डल हो, अगेन डल तो आप लाइटरूम में ठीक कर सकते हो, बट स्नैपसीड भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप वहाँ पे भी अपनी पिक्चर को ठीक कर सकते हो। ये भी है कि जब आपने देखा होगा कभी हम पिक्चर्स लेते हैं तो हाथ हमारे ब्लर हो जाते हैं, शेक हो जाते हैं, ज्यादा ब्लर नहीं, जो शेक हो जाते हैं, आप उसको स्नैपसीड पे आप ठीक कर सकते हो HDR और शार्पनिंग फीचर यूज करके। और जब जब आप स्नैपसीड डाउनलोड करोगे तब भी इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यू विल गेट अ गाइड। 5 मिनट दो स्नैपसीड को, आपको पूरा पता लग जाएगा कि स्नैपसीड कैसे चलता है। ठीक है, स्नैपसीड एडिट, मैंने आपको बताया था कि छोटी चीजें हम इरेज कर सकते हैं स्नैपसीड पे। तो मेरे पीछे एक डॉगी लेटा हुआ था, which was it was good picture, I liked it, तो मुझे बस वो डॉगी को हटाना था, तो मैंने स्नैपसीड पे हटा दिया। That is what you can do on Snapseed. छोटी छोटी चीजें आप रिमूव कर सकते हो। मैं चाहती तो ये रेड वाला जो आप ये देख रहे हो लाइन, ये स्विमिंग पूल के पास लगा हुआ था, इसको भी हटा सकती थी, बट वो मुझे इतना बॉदर नहीं किया जितना मुझे बॉदर वो डॉगी कर रहा था तो मैंने उसको हटाया। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप हील कर सकते हो स्नैपसीड पे। ये एक बहुत अच्छा फीचर है स्नैपसीड पे, एंड इट्स अ वेरी सेफ ऐप, इट्स गूगल का ऐप एंड फ्री। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्नैपसीड यूज करो, छोटी छोटी चीजें आप हील कर सकते हो इसमें। और मैं चाहती तो मैं ये जो लाइट लाइट दिख रही है आपको ग्रीन वाली, ये भी हटा सकती थी, क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़ी चीजें नहीं हटा सकती हूँ मैं। बड़ी चीजें आप हटाओगे तो मेस क्रिएट कर देगा, इसलिए जब भी आप चाहते हो कि हमारी पिक्चर से कुछ जाए तो स्मॉल ऑब्जेक्ट देखो, हम उसको हटा सकते हैं। और देखो मैंने कितनी इजीली डॉगी को हटा दिया वहां से। सो दैट्स इट, दैट इज स्नैपसीड गाइस। ठीक है, स्नैपसीड में मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन। सो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन, हम जैसे यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है, पहले उनकी पिक्चर आप देख सकते हो कि बहुत येलोइश, येलो है ना, काफी येलो है, डल भी लग रही है थोड़ी सी। तो स्नैपसीड पे आप बेसिक करेक्शन कर सकते हो। जैसे उन्होंने बहुत इजीली अपनी पिक्चर को पहले तो उन्होंने जो अपना सैचुरेशन है वो कूल डाउन किया। सैचुरेशन इज हॉट एंड कूल, येलो एंड विद गिव्स यू येलो एंड वाइट इफेक्ट्स, उसको सैचुरेशन कहते हैं। जब आप अपनी पिक्चर को ज्यादा कलर कम या ज्यादा कर सकते हो, उसको सैचुरेशन कहते हैं। पहले उन्होंने अपनी सैचुरेशन ठीक की है, आप देख सकते हो वो कितनी येलो थी पहले पिक्चर, वो वाइट हो गई, फिर उसको सैचुरेशन करेक्शन कहते हैं। और उन्होंने अपनी पिक्चर को थोड़ा सा ब्राइट भी किया है, तो आप उनके फेस पे ग्लो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, छोटी मोटी नहीं काफी बड़ी हैं ये, आई एम सो सॉरी, बट these are the things you need to figure it out when you are clicking pictures guys. ठीक है, एंड when you see कि आपकी पिक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम है, these are some amazing apps you could use and बहुत बहुत अच्छे से आप अपनी पिक्चर्स को ठीक कर सकते हो। तो can you just see how pleasing it looking, it looks to the eyes, जो आप एडिट देख रहे हो वो कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि अगर पिक्चर ठीक नहीं आ रही है तो आप स्नैपसीड यूज कर लो। और स्नैपसीड में 2 मिनट का काम नहीं है, 2 मिनट में आप अपनी पिक्चर्स को ऐसे से वैसा बना सकते हो। लाइटरूम मैंने आपको बोला था, अगेन लाइटरूम, अगर आपकी पिक्चर बहुत डल है और आपको कलर अपनी पिक्चर में डालना है तो देखो दैट गर्ल जो फ्लावर्स होल्ड कर रही है, उसकी बिफोर की पिक्चर कितनी डल है, बट कैन यू सी द आफ्टर पिक्चर? कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हम जब भी कोई चीज देखते हैं, हम ज्यादा कलरफुल चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। आईज हमेशा उनसे अट्रैक्ट होती हैं जो ज्यादा प्लीजिंग हो। डल चीजें हो तो वी जस्ट डोंट, इवन हम नेचुरली भी जब देखते हैं, हम उन चीजों को ज्यादा देखते हैं जिनका कलर अच्छा हो, हमें बिकॉज हमारी आईज अट्रैक्ट करती हैं। सेम एज द पिक्चर, when people go through your feed, they always look ki how the picture is looking. So whenever you feel that आपकी light या कलर में कुछ पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो लाइट रूम यूज कर लो। एंड इसमें भी कोई, मैंने आपको बताया था, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाओ स्नैपसीड पे, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हाउ यू कैन डू दिस, गाइड वहां पे आपको मिलती है। तो दीज आर फ्यू अमेजिंग ऐप। पिक्सआर्ट के बारे में हम अभी बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऐप है, उसके बारे में बात करते हैं। एडिटिंग एप्स, ठीक है, पिक्सआर्ट।
So guys, PixArt is also very common now. People are using it and Instagrammers, influencers भी use कर रहे हैं. PixArt का जो सबसे बड़ा मेन रोल होता है that is called the edit. जो हम लोग बैकग्राउंड को हम एडिट कर सकते हैं. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए अपनी पिक्चर, मैं इसको हटा सकती हूँ बहुत इजीली. कुछ भी लगा सकती हूँ अपनी पिक्चर में. आई एम सिटिंग हियर, आई कैन बी इन लंदन. Okay, you can just do anything with your background. Anything मतलब anything, कुछ भी आप चिपका सकते हो पीछे. And उसमें भी इतना कोई rocket science नहीं. Again, you know, you could go through the app PixArt, and PixArt में again आपको guide मिलेगा. आप जो भी आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको guide मिलेगा, और ये totally free है. So don't you know get tensed about it. PixArt में आप beauty tools भी हैं, ठीक है, smoothing your skin या जो भी है हम यूज करते हैं. But you, I think you guys are so pretty. I'm seeing so many people out here. You don't need the beauty tool. And you can add stickers to your pictures. You can make collages. You can create GIFs and many more. But the very important thing PixArt is all about कि हम लोग कुछ भी अपनी pictures पे चिपका सकते हैं. वो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ. So you can see this cute girl. ठीक है, पहले इसकी पिक्चर एक नॉर्मल वॉल है अपने उसके घर की, एंड दूसरी पिक्चर पे आप देख सकते हो दैट इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बैकग्राउंड, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन PixArt. PixArt में आप कुछ भी अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपकी यू नो वॉल खराब है या आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है या समथिंग इज रॉन्ग इन योर पिक्चर, PixArt में आप कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, एंड यू कैन मेक योर पिक्चर लुक यू नो वेरी डिफरेंट. बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो. हर पिक्चर इज लुकिंग, शी इज लुकिंग द सेम, बट जो पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो भी मैटर करता है बहुत. तो दैट्स व्हाट यू कैन डू इन PixArt. आप अपने बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है. लाइक PixArt edit, again this is my picture, and what did I do in this was, मुझे लगा कि बहुत ही खाली लग रहा है you know the background, तो मैंने simply उसको PixArt पे edit किया and you could see the effect. So that is PixArt. Okay, तो PixArt में आप कुछ भी background आप लगा सकते हो, but you know whenever you're editing be careful कि वो ज़्यादा भी अजीब ना लगे. Again उसमें 2-3 बारी आप यूज करोगे आपको पता लग जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे करना है. तो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है. वो आपको सब मेरे को भी किसी ने नहीं सिखाया था. अगेन आई टुक लाइक 10-15 मिनट्स आई स्पेंड ऑन द ऐप. 2-3 पिक्चर एडिट की, देखा कैसे होता है, वो धीरे धीरे यू नो पता लग जाता है. सो दिस इज व्हाट इज PixArt guys, and PixArt is very much in these days. People are using it to edit their pictures, and the main reason PixArt लोग यूज करते हैं is because वो अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं. ठीक है, तो PixArt के बारे में आई होप आपको पता लग गया. अगर कुछ डाउट हो तो हम बाद में यू नो वी कैन क्लियर दिस. PixArt में मैंने आपको ये भी बोला था कि हम लोग स्टिकर ऐड कर सकते हैं. सो पहले मेरी पिक्चर पे आप देख सकते हो कोई स्टिकर नहीं था, बट मैंने एक मैगजीन का कवर लगाया है अपनी पिक्चर पे, द बाजार विच इज रिटन. आप ये सब चीजें भी PixArt पे एडिट कर सकते हो. कुछ भी स्टिकर, आप कोई भी मैगजीन का स्टिकर या कोई भी स्टिकर आप वहाँ पे बस लिख दो आई वांट दिस स्टिकर, जैसे फ्लावर या बैग या कुछ भी आप स्टिकर आप लगा सकते हो इस पे. मैगजीन कवर्स, कोई भी स्टिकर आप PixArt पे लगा सकते हो. वहाँ पे एक सर्च बटन होता है and you can edit your pictures like that on PixArt. So the main 2 reasons why people use PixArt is that firstly obviously changing the background, secondly it's safe again. ठीक है, that is PixArt. Prequel is also मतलब बहुत अच्छा ऐप है ये, एंड इसमें कुछ नहीं है, इसमें फ्लिटर्स होते हैं. ठीक है, 100+ फ्लिटर्स होते हैं और बहुत अच्छे फ्लिटर्स हैं गाइस. देयर आर मेनी ऑफ एस्थेटिक वंस, एंड आप इसमें वीडियो भी एडिट कर सकते हो. 1, 2, 3, 4 जितने भी घंटे की आपकी वीडियोस हैं आप उनको एडिट कर सकते हो PixArt पे. PixArt में बहुत अच्छे इफेक्ट्स और फ्लिटर्स हैं. यू कैन चेक, you know, you could just download. Secondly also it's safe, and people are using Prequel these days. Aesthetic you know these aesthetic pictures and all you could go and edit, and सिर्फ aesthetic नहीं, बहुत उससे भी अच्छे फ्लिटर्स हैं यूज करने के लिए, और ये फ्री है. पहली बात तो ये है दैट हम जब भी कोई एडिटिंग ऐप पे जाते हैं पहले तो वो पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं, बट Prequel में भी पेड ऑप्शन है, बट जितना हमें यूज करना है उतना तो फ्री है.
मेरे पास आज तक फ्री वर्जन ही, मैंने पे नहीं किया। मैं जितनी भी पिक्चर्स अपनी क्लिक करती हूँ वो पिक्सार्ट पे एडिट कर लेती हूँ, सॉरी प्रिक्विल पे एडिट कर लेती हूँ, बिकॉज वो फ्री है एंड आई थिंक उसके जो उनके पास जो फिल्टर्स हैं वो बहुत प्यारे हैं। ये प्रिक्विल के मेरे कुछ एडिट्स हैं, आप देख सकते हो। इसमें ऐसे फ्लिटर्स होते हैं, यू नो यू कुड यूज अ many effects, not just one, बहुत हैं। ये तो मैंने आपको 4 दिखाए हैं। There are many effects, but this is how the effect of prequel is. Prequel ऐसे आपको बहुत सारे ये और ऐसे बहुत सारे effects आपको दे सकता है, and it's free. So you could you guys, when you are done with all the editing and जब आप Snapseed, आप PicsArt सब use कर लेते हो, सबसे लास्ट में आप prequel use करते हो to create the picture और उसको इनहांस करने के लिए। हम हमेशा प्रिक्वल मेरा जो पैटर्न है वो ये है कि अगर मेरी पिक्चर में कुछ रॉन्ग है तो पहले मैं स्लाइड रूम, फिर स्नैपसीड, फिर पिक्सार्ट, फिर प्रिक्वल। यू नीड टू गो इन ऑर्डर, ओके? तो तब आपकी पिक्चर बहुत अच्छे से एडिट हो जाएगी। एंड प्रिक्वल तो है ही इनहांस करने के लिए पिक्चर्स। सो व्हेनेवर यू फील यू वांट टू ऐड मोर ऑफ अ लिटिल इफेक्ट एंड आपको अपनी पिक्चर को और इनहांस करना है तो प्रिक्वल इज द राइट चॉइस, ठीक है? Posing tips and tricks for all body types. Everybody wants to know that हम कैसे pose करें, and guys, you should be feeling very confident in your own body, and this is just a tip and trick for your own unique body. मैंने कुछ ऐसी चीजें शेयर की हैं जिसको आप यूज करके आप अपनी पिक्चर को और एनहांस कर सकते हो। पोजिंग टेक्निक्स हैं कुछ और फॉर डिफरेंट बॉडी शेप्स, सो हम देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है? ओके, सबको अपनी पिक्चर में पतला लगना है भाई, है ना? सबको पतला लगना है, सबको मेरा पेट तो नहीं आ रहा, मेरा ये तो नहीं आ रहा। सबको टेंशन रहती है कि हम पतले आने चाहिए पिक्चर में यार, बट उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। एंड लेट्स लुक व्हाट आर दीज टेक्निक्स। नेवर पोज बिसाइड अ थिन पर्सन गाइस। तो इसका तो लॉजिक ही यही है कि अगर हम नेचुरली भी देखते हैं, हम नेचुरली क्या कैप्चर करते हैं? बड़ी चीज पहले कैप्चर करते हैं, फिर छोटी करते हैं ना, क्योंकि आंखों को पहले बड़ी ही दिखती है। तो इस तरह से पिक्चर भी होती है। तो अगर आप थिन पर्सन के सामने अगर आप पिक्चर क्लिक कराओगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर ज्यादा आईज आएंगी। तो अवॉइड करो कि जब आप शूट कर रहे हो या किसी के साथ व्हेन दीज पिक्चर्स आर गोइंग ऑन सम प्लेटफॉर्म, चलो ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, तो चलो आपको खड़ा होना ही पड़ता है। बट अगर कुछ स्पेशल प्लेटफॉर्म में तो आप अवॉइड करो कि हम थिन पर्सन के सामने पोज ना करें, ठीक है? ये तो ये पहली चीज है। स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग अ सेम ड्रेस, जस्ट से नो टू इट। वो तो फिर बिल्कुल ही डिजास्टर हो जाएगा, मतलब everybody will start looking at you but not the other person if you are a little bit healthy. And never be closest to the camera again. आईज हमेशा वाइट चीज कैप्चर करती है, और अगर मैं बॉटल बिल्कुल आगे रख दूंगी तो ऑब्वियसली आपको ये बॉटल और भी बड़ी नजर आएगी। दैट इज द रीजन आप जब भी अपनी फोटो क्लिक करते हो तो हमेशा पीछे थोड़ा सा डिस्टेंस अपने और कैमरा में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, so that you get a proper portion। जो आपका जो बॉडी का शेप है, it can be any shape, वो properly आए, ठीक है? use whatever props or hand to hide body parts. For example, ये जो there's this pretty lady which is wearing a black top, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस अपने हाथ आगे रखे हैं ऐसे, एंड उन्होंने अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट किया, थोड़ा सा बेंड किया। ये चीजें भी मैटर करती हैं when you are wanting to click a picture. So guys, it's not something कि मेरे को बहुत सारी चीजें चाहिए। आप खुद के अपने हाथ यूज करके भी अपने बॉडी पार्ट्स को you could just ऐसे आप फोल्ड करके अपने हाथों को, एंड यू कैन जस्ट आराम से क्लिक योर पिक्चर्स। इफ यू डोंट वांट टू होल्ड योर दिस थिंग, अगर आपको वो नहीं करना है तो आप अपना ऐसे हैंड बैग लेके भी आप ऐसे पोज कर सकते हो, आगे रख सकते हो, थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो। तो कुछ कुछ प्रॉप्स आप यूज करो जब आप अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो। तो ट्राई यूजिंग सम प्रॉप्स, एंड डेफिनेटली हैंड से बड़ा तो कुछ नहीं हमारे पास, अपने हाथ पे अवेलेबल है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप अपने हैंड्स यूज कर सकते हो, ठीक है? Turn your shoulders to 45-degree angle to the camera. अभी 45 डिग्री कुछ नहीं है, it's just tilting your this thing, your body. आपके shoulders आगे आ जाती हैं, and
45 डिग्री इज नथिंग, लेट्स नॉट गो मैथमेटिकली, बट वो इतना ही है कि आपको थोड़ा सा टिल्ट होना है और हमेशा शोल्डर ऐसे आगे नहीं रखना है, थोड़ा सा पीछे रखना है, बट बॉडी थोड़ी सी बॉडी आगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो लेडी हैं जिन्होंने वाइट शर्ट पहनी, पहले वो स्ट्रेट थी, बट जैसे ही उन्होंने टिल्ट किया, आप देख सकते हो जो उनका जो टमी का एरिया है वो टिल्ट, थोड़ा सा टिल्ट हो गया एंड शी इज लुकिंग स्लिम। दैट इज द टेक्निक। तो जब भी यू नो यू वांट टू लुक स्लिम इन योर पिक्चर्स, सो लेट्स कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि हमें 45 डिग्री छोड़ो उसको तो ठीक है, बस मुझे हमें टिल्ट होना है थोड़ा सा, सो दैट जो हमारा टमी एरिया है वो आधा इस तरफ हो जाए और आधा इस तरफ हो जाए, ठीक है। चिन फॉरवर्ड एंड डाउन, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब कभी भी आप चिन के साथ आई हैव सीन पीपल ऐसे पोस्ट करना और उनकी डबल चिन दिख जाती है, अगेन इट क्रिएट्स अगेन अ मेस, ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमेशा चिन फॉरवर्ड एंड डाउन, इतनी भी डाउन नहीं, बट आई शो यू हाउ। सो यू नीड टू फॉरवर्ड योर चिन ऐसे एंड क्रिएट इट डाउन, नॉट अपवर्ड्स। अपवर्ड्स में एक तो वो स्टिफ लगने लगेगा बॉडी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि रिलैक्स योर बॉडी एंड पोज, तो जितना आप ऊपर करोगे उतना स्टिफ होता जाएगा आपका ये एरिया। तो ऑलवेज कीप इट डाउन बट नॉट दिस डाउन, एटलीस्ट थोड़ा सा आप डाउन रखो और चिन को फॉरवर्ड करो, एंड फिर वो आपकी जॉ लाइन को शार्प कर देगा एंड इट विल गिव यू अगेन अ वेरी गुड पिक्चर। ओके, इट्स अबाउट द जॉ लाइन, एंड आपकी ये जो डबल चिन है वो भी नहीं दिखेगी। तो चिन फॉरवर्ड एंड डाउन, ठीक है। हाउ टू लुक स्लिमर, हाउ टू लुक टॉलर, ओके। सो पहले हम बिफोर पिक्चर देख लेते हैं। शी इज अ यूट्यूबर गाइज एंड actual height is 4 feet, but in her pictures you could just see कि उसने कुछ tricks किए हैं अपनी pictures में, apply किए हैं कुछ tricks, and she is just looking so tall in her other picture, which is the after picture, ठीक है। position of the camera should always be below, okay guys। तो कभी भी आप नोटिस करना कि जब आपका कैमरा नीचे होगा ना, तो वो आपकी पूरी बॉडी को कैप्चर करता है और इस वजह से आपकी बॉडी टॉल लगने लगती है। इसमें एक ये चीज है कि आप कुछ भी कट नहीं होना चाहिए। अगर हम पूरी बॉडी ले रहे हैं मतलब पूरा फ्रेम लेना है हमको, हमें टोस से लेके हेड तक पूरा कैप्चर करना है। अगर आपके पैर कट हो गए पिक्चर में तो आपकी पिक्चर टॉल लुकिंग नहीं आएगी। ऑलवेज फिल द एंटायर फ्रेम, आप पूरे फ्रेम में आने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो इन बिफोर पिक्चर, पहले उसकी थोड़ी सैंडल कट गई है, इफ यू कुड सी, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रेम नहीं है, बट जो अपनी सेकंड पिक्चर देख रहे हो आप देख सकते हो फ्रॉम टो टू हेड शी इज देयर, उसका कुछ भी हाथ पैर कुछ कट नहीं हुआ है। तो ये ऑलवेज ध्यान रखना, जब आपको पिक्चर में टॉल लगना हो तो आप हमेशा नीचे से एक तो लोगे, आपका फोन नीचे होगा, एंगल नीचे होगा आपके फोन का, और हमेशा आप एंटायर फ्रेम फिल करोगे, ठीक है। चलते हुए पिक्चर्स क्लिक करना भी आपको टॉल बना लाइक लुकिंग बना सकता है, बट एंगल हमेशा आपका नीचे ही रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। बट अगर आप वॉक करते हुए पिक्चर लेते हो तो भी आप टॉल लगते हो पिक्चर्स में, ठीक है। और स्टैंड स्ट्रेट गाइस, ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट व्हेन यू आर क्लिकिंग पिक्चर्स लाइक दीज। एंड अगर आपको टॉल लगना है तो अगेन देयर आर 3 थिंग्स। एंगल डाउन होगा आपके कैमरे का, आप पूरा इंटायर फ्रेम लाइक जो पूरा है उसको फिल करोगे अपने फ्रेम को, कुछ भी कट नहीं होना चाहिए, हाथ पैर सब आने चाहिए आपकी पिक्चर्स में, और स्टैंड स्ट्रेट। सिर्फ ये 3 चीजें आप करना और यू विल गेट अ परफेक्ट पिक्चर लाइक दिस, ठीक है। How to look photogenic, okay, this is a very important part guys। many people say that we are wearing such a good dress, यार इतना अच्छा मेकअप किया है, इतना अच्छा सब कुछ, इतने अच्छे पोस्ट किए, फिर भी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही। so we are missing out in 2-3 things। let's see what is that। lean against a colorful wall। सो कलरफुल वॉल, अगेन गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कुछ चीज कैप्चर करते हैं अपनी आईज से तो हम हमेशा उन चीजों को ज्यादा देखते हैं जो हमारी आईज को अट्रैक्ट करती है। हम कलरफुल चीजें पहले देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी पिक्चर ऐसी होगी जहाँ पे कलर ज्यादा होंगे, वो ऑटोमेटिकली बहुत फोटोजेनिक और बहुत प्लीजिंग लगती है आइस को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर जाते हो, आउटडोर शूट करते हो, तो कलरफुल वॉल तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बट अगर आप घर पर कर रहे हो और आपके घर पे कलरफुल वॉल नहीं है, देन पिक्स आर्ट में अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो।
तो ये सब चीजें जब आप पिक्चर क्लिक करोगे तो सोचना कि हम ये कैसे ठीक करें या जो है, बट एक सजेशन है दैट लीन अगेंस्ट अ कलरफुल वॉल व्हेन यू गेटिंग योर पिक्चर्स क्लिक. ओके, प्ले अराउंड विद योर ड्रेस और स्कर्ट. तो एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है, देखो. दिस गर्ल, शी इज वेयरिंग नथिंग, अ कम्प्लीटली अ वाइट ड्रेस. ठीक है, नथिंग इज सच ग्रेट इन अ पिक्चर. that is sorry picture though is really great, she is also looking very great, but ऐसा कुछ there's nothing more. like ड्रेस पहनी है उसने, ठीक है, पोज दे रही है, बट why is it looking good? it is looking good because she is playing around. मैंने आपको बोला था कि पहले ही पहले वाले साइड में कि आप हमेशा अपनी पिक्चर में सिर्फ कैमरा को नहीं देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी पिक्चर को अच्छा बनाने के लिए. तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या पोस्ट करूं, देन हमेशा प्ले अराउंड विद समथिंग. मे बी योर बैग, मे बी योर स्कर्ट, मे बी योर इवन हेयर. यू कैन यूज योर हेयर ऑल्सो, योर इयरिंग्स. जैसे आपने देखा होगा लड़कियां ऐसे इयरिंग्स के साथ पोस्ट करती हैं, ठीक है, इयरिंग्स, सो मेनी थिंग्स. बट आपको कुछ ना कुछ अपनी पिक्चर में करना पड़ेगा, ठीक है. आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते हो अपनी पिक्चर में, ठीक है. तो वो चीज का ध्यान रखना, ठीक है. एंड wear accessories like sunglasses, earrings, necklaces, etc. ठीक है. For example guys, कभी ऐसा हो जाता है कि हम we don't sometimes it happens कि हम लोग बहुत plain कपड़े पहन रहे हैं, and in that case what you can do is like this girl who is wearing a black top, उसने सनग्लासेस भी पहने हैं, इयररिंग्स भी पहनी है, नेकलेस भी पहनी है, एंड दैट्स व्हाई हर पिक्चर इज लुकिंग अट्रैक्टिव. जब हम अपनी पिक्चर्स में कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं, उसकी देखो ब्लैक टॉप है, ठीक है, शी इज वेयरिंग अ ब्लैक टॉप, बट व्हाई इज इट लुकिंग सो गुड? बिकॉज शी इज वेयरिंग एक्सेसरीज. सो जब भी आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू वेयर इयररिंग्स, सनग्लासेस, नेकलेस, सब एक साथ मत पहन लेना, जो अच्छा लगे, बट कुछ ना कुछ जरूर पहनना. उससे भी पिक्चर, मेरे को देख लो, मैंने एक ब्लैक टॉप पहनी है, ठीक है, बट मैंने एक इयरिंग पहन ली है, अगेन अ कलरफुल इयरिंग, सो दैट मेरा जो मेरा जो देखने में जो जैसे देखेंगे मुझे लोग, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत लगे तो दैट वी आर ड्रेस्ड अप. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये इयरिंग उतार देती हूँ, हाउ वुड इट लुक? I look so dull. It creates a lot of big difference. Can you just see? So these things really matter, guys. That जब भी आप पिक्चर्स क्लिक करते हो, आपको कुछ ना कुछ जरूर पहन लेना चाहिए, ठीक है. तो उसका भी चीज का ख्याल रखो कि आप कुछ पहनो, ठीक है, अपनी पिक्चर में. Swing your handbag, ठीक है. So you can see this picture again, and this we could also relate to the taller, जो मैंने आपको how to look taller. Again आप देख सकते हो उनका कैमरा एंगल डाउन है, ठीक है, वो वॉक कर रही हैं और अपने बैग के साथ शी इज प्लेइंग अराउंड, and she is not looking into the camera, guys. Can you see how good this picture is looking? I don't know why this is so attractive to me. I don't know अगर आपको इतनी attractive लग रही है पिक्चर नहीं, मुझे बहुत attract किया है इस पिक्चर ने. It's looking so real and it's looking so pleasing to eyes. I just love the way she's holding her bag. ऐसी चीजें आप हमेशा ध्यान रख सकते हो कि हाँ, आपको हमेशा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको हमेशा आपको कैमरा में देखना है. देखो, शी इज जस्ट लुकिंग देयर and she's completely looking so good. The way she's walking, जो पिक्चर क्लिक करवाई है उसने, एंगल डाउन है उसका, टॉल लग रही है, वो चल रही है, हैंडबैग से अपने प्ले कर रही है. And the first and the last thing which I would always mention is that look away from the camera, guys. आप जितना कैमरा से दूर मतलब देखोगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता जाएगा. That's what I have figured out. मैं कभी भी, मेरी बहुत रेयर पिक्चर्स हैं जो मैंने कैमरा में देख के क्लिक की हूँ, वेरी रेयर पिक्चर्स. I don't like clicking pictures like that because वो मेरे मन में फील कराती हैं कि यार पता नहीं how am I even looking. तो जितनी कैंडिड हो सके ले लो. For freshers, जो बिगनर्स हैं, obviously टाइम के साथ आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि you would not hesitate to look into the camera. बट हाँ, शुरुआत के लिए हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, मतलब कैमरा में ना देखना. तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल, ठीक है. अगर कोई डाउट होगी तो हम करें. So these are few pictures of mine which I have clicked by my own.
and I have always not wanted to look into the camera. And मेरी जितनी पिक्चर है यहाँ वहाँ दिखते हुए, you would not find me, you know, आज तक भी मैं कैमरा में देखती ही नहीं हूँ. मैं बस अपनी पिक्चर्स क्लिक करती रहती हूँ, फिर बैठ के देखती हूँ कि ये अच्छी है, अच्छी है. पहले वाली पिक्चर में तो मेरी आँख ही बंद है, बात ही छोड़ दो सारी. ठीक है, तो you know these things create a lot of they create an aura in your picture also, and a mood also. So I opt for not looking into the camera. एंड मैंने अपनी एक्सेसरीज भी पहनी है, मैंने अपना एक हैट पहना है, एक ज्वेलरी पहनी है यहाँ पे, एंड यू नो कीप एडिंग सम एक्सेसरीज सो दैट योर पिक्चर लुक्स गुड. ठीक है, सेकेंड पिक्चर में भी मैं कैमरा में नहीं देख रही हूँ. आई एम वेयरिंग अ बेल्ट, एंड बेल्ट भी मैंने कलरफुल पहनी बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अपनी जो पिक्चर थी उसको इन्हांस करना था, तो कुछ कलरफुल जरूर पहनना. नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑलवेज ऑप्ट टू वेयर समथिंग कलरफुल व्हेन यू आर हैविंग लाइक कलर्स लाइक वाइट बहुत ज्यादा प्लेन होता है, तो वाइट में आप, ब्लैक तो डार्क होता है तो ब्लैक तो ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, बट वाइट भी अगर आपके पास प्लेन कुछ वाइट हो तो ऑलवेज ऐड कुछ, अगर आप कलरफुल बैग, कलरफुल बेल्ट, कलरफुल इयररिंग्स कुछ ऐड करो ताकि आपकी जो वाइट जो बैकग्राउंड है वो और अच्छा लगे. जब वाइट बैकग्राउंड है या वाइट शर्ट है उसको इन्हांस करने के लिए जरूर कलर ऐड करना. ठीक है, एंड ये भी जो पिक्चर है मैंने लाइट रूम में एडिट की है. आपने देखा होगा क्लाउड्स आ जाते हैं स्काई में एंड पूरा वाइट लगने लगता है स्काई, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी एट दैट डे. ये पूरा वाइट था गाइस, दिस पिक्चर वाज टोटली वाइट. ये पीछे ये मैंने उसको लाइट रूम से ठीक किया है. मैंने आपको बताया था आप अपनी पिक्चर्स को बिल्कुल किसी भी कलर में आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट लाइट रूम अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस चीज़ों को सेंस करता है कि ये क्लाउड है, ये this is a cloud or maybe this is a building. वो लाइट रूम अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको सिंक करता है और आपको कलर्स के ऑप्शन देता है कि आप इस पे ये कलर कर सकते हो, इस पे वो कलर कर सकते हो. वहाँ पे लाइंस बनी होती हैं. ठीक है, तो यू कैड क्रिएट दिस इफेक्ट इन लाइट रूम अगेन. एंड लास्ट पिक्चर मैंने वॉकिंग पिक्चर ली है, मैं कैमरा में नहीं देख रही हूँ अगेन. सो ऑलवेज ठीक है, डोंट ऑलवेज लुक इनटू द कैमरा, जो हो रहा है चलने दो बस. ठीक है, और ये पिक्चर भी मैंने पिक्सआर्ट पे एडिट की है. मैंने आपको बताया था मैगजीन कवर, कुछ ऐसे स्टिकर्स, ये मैंने मैगजीन का स्टिकर लगाया हुआ है. तो ऐसी ऐसी चीजें आप पिक्सआर्ट पे एडिट कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. If you guys have anything to ask, you can ask me. It can be anything related to anything जो इस सेशन से था. You guys can unmute and ask me. Let me just stop the, how do I stop this? Stop share. Okay. Someone wants to ask something? Hello, ma'am. My name is Neha. How's you doing? I'm doing good, but Neha, I can't see you, dear. Yes, ma'am. Actually, I was doing some of another work. I just heard whatever you said. So that is why I just, yeah. So ma'am, my question was, if we'll continuously use so many apps on a picture, won't it affect the quality of the picture? Yes, that is the reason I'm sharing this with you guys. Yes. These are very professional apps, Neha. Lightroom Yes. तो इतने प्रोफेशनल है कि वो तो इंट्रोड्यूस हुआ है हमको, हम जैसे नॉर्मल लोगों को, बट लाइटरूम और स्नैपसीड गूगल के ऐप हैं, एंड दिस इज यूज्ड बाय फोटोग्राफर्स, जो फोटोग्राफर्स होते हैं प्रोफेशनल, एंड इनमें कॉम्प्रेस नहीं होती हैं बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ सेफ ऐप एंड दिस इज क्रिएटेड बाय गूगल, और ये एक पर्टिकुलर चीज के लिए हुआ है, मतलब इसमें और कुछ भी नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर पिक्चर्स, तो उसमें कॉम्प्रेस नहीं होता है. तो all right, thank you so much, ma'am. This is the thing with again Prickville and PicsArt also is a very safe app. It's not an app by Google, but इसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर आप फॉलो करोगे स्टेप्स, पहले आप Lightroom यूज करोगे, फिर Snapseed यूज करोगे, फिर PicsArt और फिर Prickville यूज करोगे. Okay, ma'am, because I have some of the apps and I also use some of the apps. Which so that are is those why apps?
that sometimes Prequel. I have Prequel. I use Prequel. Yeah, so Prequel is that. तो क्या होता है नेहा, that मैंने जो आपके साथ Lightroom और Snapseed ऐड किए हैं वो होते ही इस चीज के लिए हैं कि अगर आपकी पिक्चर ब्लर हो या उसकी जो डलनेस हो उसको पहले आप ठीक करोगे, फिर प्रिक्विल पे उसको आप एडिट कर सकते हो। तो पहले आपको पिक्चर को अपनी ठीक करना पड़ेगा, फिर प्रिक्विल और पिक्सार्ट में इतना भी होता है कॉम्प्रेस, बट इतना भी नहीं होता है जितना व्हाट्सएप पर हो जाता है, बिकॉज व्हाट्सएप हैज सो मेनी थिंग्स, राइट? इट्स नॉट जस्ट शेयरिंग ऐप, इट्स सो मेनी। आप उसमें कॉलिंग करते हो, उसमें चैटिंग करते हो, बट हाँ लाइटरूम और स्नैपसीड बहुत प्रोफेशनल ऐप्स हैं, उनमें ये सब चीजें नहीं होती। हाँ प्रिक्विल और पिक्सार्ट पे हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले लाइटरूम यूज करो, स्नैपसीड यूज करो, पिक्सार्ट करो, फिर प्रिक्विल यूज करो। बार बार Okay, ma'am. तो कंप्रेस हो जाएगा वो, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. It was quite pleasure listening to you. Same to you. I wish I could see you, but it's okay. Yes, ma'am. Actually, okay then. I'm sorry, I can't show you my face. No problem. All right. Anyone else, guys? If anything you have related. Glory has a question. Glory, go ahead. Me. Very Glory. Good afternoon, ma'am. Thank you My so God, much. I can't see you guys. You can't see me, ma'am? Glory's video is on, Riya. Where is she? It's me here, ma'am. Anyways, Glory, wait, I'm finding you. You asked. Okay, she's here. Yeah, I got it. Okay. Yes, okay. Thank you so much, because I'm